Hello children, Namaste, good morning and happy International Yoga Day. I hope you all are fit and fine at your place. So, how was your experience in Yoga Day? I hope you all have done your yoga with your teachers and your yoga teacher as well. Children, after summer break, we'll start our new journey of studies of this session. Today, in maths class, the first thing, I am not going to give you any work today. We just try to understand the new topic. Children, we have already completed our first chapter and the warm-up exercises also. Now, the second chapter, that is lesson 2, is addition. Okay? Addition. What is addition? Addition क्या होता है? हम ऐसा क्यों कहते हैं ये एडिशन है, इस बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल से समझ में आता है? नो, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर फर्स्ट द different words related to addition. Yes children, can you tell me what is addition? Yes, addition is the collection of the things. जब हम किसी चीज को कलेक्ट करते हैं उसको हम एडिशन कहते हैं. ओके, जब आपने कोई चीज उठाई, आपने क्लास 1 में भी पढ़ा, उससे पहले भी यू हैव लर्न्ड अबाउट इट, बट यू हैव लर्न्ड टिल 1 digit नंबर. ओके, ओनली वंस वाले नंबर को आपने ऐड करना सीखा विदाउट ग्रुपिंग. अब व्हाट इज ग्रुपिंग? विल सी व्हाट इज ग्रुपिंग. सो make sure you should watch this video very carefully. First of all, I will share the synonyms of addition. जब आप एडिशन चैप्टर को पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो आपके सामने different words आएंगे. When you are doing statement questions, whether you are reading the questions, you will see the different terminology for using addition. You should know about it. जब आप स्पेशली जब आप स्टेटमेंट क्वेश्चंस करते हो तो मैक्सिमम चिल्ड्रन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एडिशन से रिलेटेड है या सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द सिनोनिम्स रिलेटेड टू द एडिशन. एडिशन बहुत इजी होता है. यू कैन डू इट थ्रू फिंगर्स, यू कैन डू इट थ्रू योर माइंड, और यू कैन मेक द लाइन्स. बट नाउ यू आर प्रीटी बिग, नाउ यू आर इन क्लास 2, तो आपको लाइंस बना के अब नहीं करना है. इन दिस चैप्टर यू विल गो थ्रू विद द 2 digit नंबर एडिशन, 3 digit नंबर एडिशन, विदाउट ग्रुपिंग एंड विद ग्रुपिंग. ओके, सबकी टर्मिनोलॉजी 1 by 1 आई विल एक्सप्लेन यू. सो लेट्स स्टार्ट विथ 1 activity. कैन यू एड द थिंग्स in your house, like if you have the pillows, can you count all the pillows? And how many pillows in your parents' room, how many pillows in your room, or extra pillows over there? Can you count it? Yes, you can easily count it. So children, as I have already explained what I am going to tell you in this video, okay, first of all I will show you the synonyms related to the addition, and then I will show you the names of the addition. कि हम एडिशन के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं. हमें ये पता होना चाहिए ना कि किस चीज को हम क्या बोलते हैं. Then you will go through with the chapter. Just go through with it. Don't do the exercises, don't do anything. We will do it from the tomorrow. First, understand the addition. Addition क्या है? ठीक है, जब आपको उसके नाम पता चल जाएंगे, उसका वर्किंग स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एडिशन. सो शैल वी मूव टू द वीडियो? ओके चिल्ड्रन, फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. जो नंबर्स हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं ऐड एंड. ऐड एंड. ओके, लर्न इट. ऐड, ADDEND, इसको आप स्प्लिट करके लर्न कर सकते हो. ऐड एंड. प्लस का साइन यू नो दैट, इक्वल्स, और जो टोटल निकल के आता है दैट इज कॉल्ड सम. दैट इज कॉल्ड सम.
Yes, kids, I'm talking about this. You should know the number sentence of the addition. आपको पता होना चाहिए किस चीज को हम क्या कहते हैं. It will help you to solve with the things. क्योंकि जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, mental maths करते हो, है ना, तो it will help you. So I hope you understand what I am telling you. Yes, children. Next is addition. इसके synonyms. Synonyms means addition को हम और किस तरह से बोल सकते हैं. Next question you may think about, ये कहाँ use होगा? Yes, children. It will use in that your problem sums. Okay? जिसमें question लिखा होता है and you have to solve it. Like in all, and, increased by, together, sum, plus, altogether, and total. Okay, these are some name. In all means, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि ए बच्चे के पास 5 चॉकलेट्स हैं, बी बच्चे के पास 6 चॉकलेट हैं, सी बच्चे के पास 2 चॉकलेट्स हैं. तो हाउ मच टोटल इन ऑल या हाउ मच इन ऑल मीन्स उसको गैदर करने पर कितना आ रहा है. एंड हम यूज करते हैं ना, एंड वर्ड यूज करते हैं कि इसको इसके साथ जोड़ो. तो एंड. इंक्रीज्ड बाय, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 5 चॉकलेट्स एंड इट इज इंक्रीज्ड बाय 9, है ना, तो आप कर सकते हो कि अच्छा पहले 5 थी फिर 9 हुई तो और कितना एक्स्ट्रा मिला उनको. ठीक है. टुगेदर, एक साथ, इकट्ठा, कलेक्टिव. सम, यू नो दैट. प्लस भी आप जानते हो कि प्लस का साइन आप देख रहे हो, इट मीन्स इट इज अ सम ऑफ एडिशन. ऑल टुगेदर, एक साथ इकट्ठा करना. जैसे मैंने आपको बोला कि हाउ मेनी टॉयज यू हैव. ठीक है, आपने अपनी कार्स काउंट की, आपने अपने ब्लॉक्स काउंट किए, माइट भी आपके पास और भी टॉयज हो, तो ऑल टुगेदर हाउ मच यू हैव. ओके. टोटल, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स यू हैव इन योर पेंसिल बॉक्स. दिस वे. ओके. तो बच्चों जब आप चैप्टर पढ़ोगे, जब आप हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, तो यू मे गो थ्रू विद दीज वर्ड्स ऑल्सो. ठीक है, नॉट ऑल बट few of them you will definitely going to see. तो don't be confused. ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में एकदम सेट रखना है बिकॉज इट विल गोज फॉर लॉन्ग. ठीक है, आप बड़ी क्लास में भी जाओगे तो इसी तरह के आपको वर्ड्स मिलेंगे, तो ये आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम सम्स को समझने के लिए, है ना. हम नॉर्मल सम्स कर लेते हैं, प्लस माइनस ऊपर नीचे दिया है, वी विल डू. पर जब आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाता है तो जनरली वी कंफ्यूज कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है. ठीक है, तो जब हम प्रॉब्लम सम्स करेंगे तो आई विल टेल यू हाउ टू रीड इट ऑल्सो, कि आप क्वेश्चन से कैसे आंसर्स को फॉर्म कर सकते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन. जस्ट गो थ्रू विद दिस वीडियो एंड नॉट टू मच, जस्ट रिलैक्स. So children, I hope you understand the concept of addition. And with this small video, I'm not going to give you a burden today, but from tomorrow we should be tighten up your belt for our session. Okay, because exams are coming, in the end of the July or first week of August, your UT1 is going to be start. Then you have to be ready for everything. Okay children, take care. Bye bye.